गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज असी करांगे 11th क्लास का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर की कुछ डिस्कस करने वाला है। पहला तो है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, anatomy, then parts of a typical plant। तो जो फर्स्ट टॉपिक है साडा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हुंदी की चीज है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप and structures of any organism is called as a morphology। तो वो स्टडी ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, that study is called as the morphology। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ external shape and structure। अगर यही स्टडी असी इंटरनल स्ट्रक्चर की गल करिए then it is called as the anatomy। So anatomy is the study that deals with the internal shape and the structure। हुन बेटा से टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की गल करते हैं। पहला तो एक वर्ड मैं यूज कर रहा है टिपिकल। टिपिकल मींस की होता बेटा वो प्लांट, ठीक है, जिसके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਐਨ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਿਪੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਾਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਭਾਗ ਹੈ, that forms the root system। वो की बनाएगा? रूट सिस्टम बनाएगा। और जेड़ा पार्ट धरती के ऊपरले पासे आएगा, that system forms the shoot system। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਸ਼ੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਮ ਔਰ ਸ਼ੂਟ। ਸਟੈਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਡੰਡਾਕਾਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, that is called the stem। ਔਰ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਬਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, then it is called as the shoot। तो दो सिस्टम है बेटा प्लांट्स दे विच। एक दा नाम है अबव द ग्राउंड, दैट इज द शूट सिस्टम, और अंडरग्राउंड दैट इज द रूट सिस्टम। और इहदे ऊपर जितने भी पार्ट्स लगे हैं, दीज ऑल पार्ट्स आर कॉल्ड एज द, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ऑर्गन्स ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स प्लांट ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇटिव ऑर्गन्स और दूसरे ਹੁੰਦੇ हैं रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कितने किस्म के हैं? दो तरह के, वेजिटेटिव और दूसरे किहड़े है? रीप्रोडक्टिव। रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किहड़े-किहड़े हुंदे हैं? जेहड़े ऑर्गन्स जद रीप्रोडक्शन का पार्ट हो, प्रोडक्ट हो, या रीप्रोडक्शन च पार्टिसिपेट करते हो, दे आर कॉल्ड एज द रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जेहड़े ऑर्गन्स सिर्फ प्लांट की ग्रोथ ਨੂੰ मेनटेन करके रखते हैं, रीप्रोडक्शन च डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका कोई भी रोल नहीं हुंदागा, दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। हुण ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ऑर्गन्स बनाने हैं, जिवें ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਵਸ है, ਲੀਫ है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, that part is called as the node। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? node ਕਹਿੰਦੇ हैं। और एक ਹੈਗਾ लीफ है, ठीक है। ਹੁਣ दूसरा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ लीफ है, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ node ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹ ਨੋਡ ਔਰ ਇਹ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ that is called as the internode। दो नोड ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੋਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਫ ਹੈ, ਲੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, that angle is called as the axil। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਫ ਦਾ ਐਕਸਿਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, हर नोड के ऊपर सिरे के ऊपर एक बड प्रेजेंट होगी। बड दो जगह के ऊपर हो सकती है, सिरे के ऊपर बड है तो उसका नाम है टर्मिनल बड, और बड इतने अपने को एक्सिल में भी हो सकती है। अगर एक्सिल में बड लगी है then it is called as the axillary bud। और ये बड ग्रो करके की बनाएगी, फ्लावर बनाएगी। फ्लावर तो की बनेगा, फ्रूट बन जाएगा, और फ्रूट दे विच की होंगे सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये वाले सारे चीज़ां फ्रूट, सीड, बड, लीफ, ठीक है, ये सारा में की कहेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन्स। ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, सॉरी ये ऑर्गन्स है अपने को इन्हां दे विच। क्योंकि फ्रूट किहदा प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कित्थे हुंदी है फ्लावर दे विच। सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जिहड़ी स्टेम है, लीफ है, रूट्स हैगियां, दीज आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द की कहांगे इस नु प्लांट्स कहांगे। रूट देखिए नीचे वाला पार्ट है अपने को जिहड़ी मेन रूट दिखाई दिंदी है असि इस नु की कहांगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की जी ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस है इट इज कॉल्ड द टर्शरी रूट्स। और कई बार रूट दियां अपने को टर्शरी रूट की भी ब्रांचेस होंगी हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रूटलेट्स। रूटलेट्स और रूट के सिरे के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी हैं, दीज आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। The primary root along with the secondary root, tertiary root, rootlets and root hairs, ये सारा कुछ मिलके की बना देगा रूट सिस्टम। और ऊपरले पासे स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ये बर्ड्स, ये सारा कुछ मिलके की बना देंगे शूट सिस्टम। हुण ਅਸੀਂ अगर गल करिए सम अप करिए तो एक प्लांट ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। एक प्लांट के ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ रूट्स, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीव्स, नंबर 4 बड, नंबर 5 फ्लावर और नंबर 6 की अपनी को सीड है। These all are the organs। और इहदे विच रूट, स्टेम ते लीव्स ये की है वेजिटेटिव ऑर्गन्स है और बर्ड, फ्लावर, सीड्स की है रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और इस चैप्टर दे विच ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ वन बाय वन ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟ ਦੀ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਟੂ ਸਿਸਟਮਸ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ and other is called adventitious root system। प्लांट्स बेटा दो तरह के है, एक डाइकॉट्स, एक है मोनोकॉट्स।
ये क्लासिफिकेशन उनके विच एक कॉटिलेडनस फूड वाला मटीरियल हैगा उनके डिवाइड उहदे ऊपर बेस्ड हैगा जिन्हां विच दो कॉटिलेडनस हैगे दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स जिन्हां च एक कॉटिलेडनस है दे आर कॉल्ड मोनोकॉट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਈਕॉट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮੇਨ रूट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡ ਪੱਟਿਓ ਘਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਟ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ they are called secondary roots दोनों पासे होंगियां और जो सेकेंडरी रूट दी आगे ब्रांचेस हैगियां दे आर कॉल्ड एज द टर्शियरी रूट्स और इन्हें ऊपर दी ब्रांचेस और भी हो सकती हैं दे आर कॉल्ड एज द रूटलेट्स और सिरे के ऊपर प्राइमरी रूट के किनारे के नेड़े बाला वाली स्ट्रक्चर्स होनियां दे आर कॉल्ड एज द रूट हेयर्स और ये सारा कुछ मिलके की बनाता है टैप रूट सिस्टम और ये मोनोकॉट्स है का पट के देखियो तुसी तो उन्हें रूट्स तो मुझे दिखाई दे रही है बेटा उन्हें कोई भी मोटी रूट नहीं दिखाई देनी एक ही तरह दियां कई रूट्स दिखाई देनियां तां नहीं पता लगेगा कि केड़ी रूट मेन है प्राइमरी है केड़ियां दूजियां हैगियां ते इहदी अपीयरेंस किस तरह दी होगी धागे वर्गी होगी ऐस करके बेटा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम नो असी फाइब्रस धागेदार रेशेदार रूट सिस्टम भी कहते हैं ये मोनोकॉट विच हुंदी है और एक विच होगी डाइकॉट विच हुंदी है यह सीड दे विच जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो दा रेडिकल पार्ट तो ग्रो करती है जी टैप रूट हैगी प्राइमरी रूट वाली रेडिकल तो ग्रो करती है अदर देन रेडिकल नु छड्ड के किसी होर भाग तो है ग्रो करती है और ये डाइकॉट्स दे विच है यह मोनोकॉट्स विच होता है लखां किस्म के पौधे है कि यह दोनों किस्म के रूट्स होंदी है यस होंदी है दोनों किस्म दी है पर कई प्लांट्स दे विच मॉडिफाइड हो जाती है चेंज हो जाती है उन्होंने ਅਸੀਂ अगले टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा फीचर्स गुण ऑफ ए टिपिकल रूट एक रूट के किहड़े किहड़े गुण होंगे पहला गुण तो है बेटा ये अंडरग्राउंड होंगे रूट धरती के विच होंगी है दूसरा नॉन ग्रीन होंगी है बेटा नॉर्मली जिहड़ियां स्टेम्स है वो ग्रीन होणगियां और रूट्स की होणगियां नॉन ग्रीन होणगियां और इन्हां दे विच नोड्स and internodes absent होंगे कोई भी ना पर लीफ फ्लावर बड ये सारे की होंगे विच एब्सेंट होंगे कुछ पॉइंट और बढ़िया है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि एक धरती की ग्रेविटी वाल मुड़ती है ठीक है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक लाइट तो परा जाती है यह रोशनी वाल नहीं रोशनी तो परा जाती है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हाइड्रो मैंने वाटर रूट्स जिधर वालों पानी हुंदा है उधर वालों मूव कर देते
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਰੂਟ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਟਨੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਾਟਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।